So, good morning students, myself Professor P.B. Ingde, and today we have to conduct the lecture number 7. Okay, so today we have to conduct lecture number 7. So what is today's topic? Today we have to define some specific property definitions. I write on the heading specific property definitions. Yes or no? Yes students, this is our today's titles, some specific property definitions. तो बच्चों, हमने हमारे पहले लेक्चर जो हुआ लेक्चर नंबर 6, उसके अंदर हमने पढ़े थे इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डिफरेंस. बराबर है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास में है. एक्सटेंसिव बोले तो इट इज़ डिपेंड अपॉन द मास, वी नो दैट. ओके, वी इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस विच प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव. ओके, एंड अनदर व्हाट इज वी डिस्कस intensive property. These two definitions is already discussed in our previous lecture, boys. Now today our title is this definition, specific property definitions. Okay, so first we define the properties. What is density? We know the symbol of this is the rho and this is the density. Okay, so what is the density definition? So density is defined as what is mass per unit volume is called as density. Yes or no? Yes, this is the standard definition. What is the mathematical formula? Rho is equal to m upon v. This is the formula. Okay, and what is the unit? Mass measured in kg and volume measured in meter cube. So this is a definition of the boys. What is simple definition? Density. So this is the first property, specific property definitions. Now another definition we have, second definitions we discuss here. So second definition, boys, we write down. Second is what is specific volume. Okay, these are the specific volumes. So what is the specific volume? Specific volume, very simple definitions. The reciprocal of density, is called as specific volume. Yes or no? Yes. So it is the symbol is what is the show by the letter is small vs, like that. Specific volume, the reciprocal of density means what is 1 by rho. So what is we write down in mathematics? Specific volume 1 upon rho means what is, it is mass upon volume. So what is we get here? We get volume per unit mass. Okay, and what is the unit? The SI unit is, what is the SI unit? We write down, boys, here. Specific volume is measured in what is meter cube and mass measured in kg. Okay, so we have to write down the sum. Suppose this is my first point here, second point is here. All specific volume is a intensive property, is a intensive
प्रॉपर्टी। यस और नो? यस। मतलब बच्चों स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होंगी स्टूडेंट्स? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, मतलब हर स्पेसिफिक जो कंडीशन वाली प्रॉपर्टी है वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे बच्चों? इंटेंसिव में। इंटेंसिव का मीनिंग हमारे को पता है क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ अ systems. This is my second definitions. Then we write down the third definition, boys. Here, see. So third definition we have to write down the boys. Third definition is what is? Specific gravity. Specific gravity definitions we have to write down here. Specific gravity. Okay. So this is our third definition in a specific gravity, boys, and the symbol of this specific gravity is nothing but what is? The symbol is SG. It is shown by the letter, I write down in bracket, it is the SG symbols. Okay, so what is the definition? Specific gravity is defined as, it is a ratio, it is a ratio of, what is? It is a ratio of, it is a ratio of density of any substance, density of any substance, density of any substance to the density of, to the density of water, to the density of water, to the density of water. Okay boys, so this is the very simple definition. Density of water at what is 4 degree Celsius. And what is the density of water we consider here? The water density consider 1000 kg per meter cube. So what is, we write down in mathematics? The specific gravity is nothing but what is? Density of any substance, means rho s upon what is? Density of waters. Okay boys, so a specific weight, specific weight. Okay, the symbol of the specific weight is, boys, what is? It is shown by the letter gamma. Okay, तो देखिए दोस्तों, अब इसके डेफिनेशन क्या रहेंगी? द स्पेसिफिक वेट, द स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट इज डिफाइन एज, इज डिफाइन एज इट इज a ratio of, it is a ratio of, what is the ratio? Weight per unit volume, weight per unit volume is called as specific weight points. बराबर, ये सिंपल डेफिनेशंस। अब देखिए दोस्तों, इसको अगर मैथमेटिक्स में लिखेंगे तो क्या सिंबल आएगा? ये गामा, ये सिंबल हो गया स्पेसिफिक वेट का। काय का रेशियो हमारा? वेट का सिंबल आ गया यहाँ पे W पर यूनिट वॉल्यूम स्टूडेंट्स। अब वेट को हम कैसे लिखते हैं बच्चों? व्हाट इज द वेट फार्मूला? वेट का फार्मूला रहता है हमारे पास में mg, और mg का मीनिंग क्या है बच्चों? न्यूटन है। तो इसका फिर SI यूनिट क्या होगा? फिर बताइए मुझे। SI यूनिट इज क्या आ जाएगा स्टूडेंट? फिर बताइए। गामा, वेट का यूनिट क्या आ गया? न्यूटन, और वॉल्यूम का क्या आ गया बच्चों? मीटर क्यूब। तो SI यूनिट इज न्यूटन पर मीटर क्यूब। और ये जो स्पेसिफिक वेट है ये भी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यस और नो? यस। मतलब हर चीज़ जो स्पेसिफिक के रिलेटेड होंगी वो कौन से कैटेगरी में चल जाएंगी? हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी के। यस और नो? अब हम लोगों को थर्मोडायनामिक की डेफिनेशन पता है, और इक्विलिब्रियम बोले तो कैसा? इक्वल,
equal or does not change, nothing but the equilibrium. अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर मैं एक सिस्टम कंसिडर करता हूँ, सपोज दिस इज द वन कंटेनर, यस और नो, यस, ये कंटेनर में मैंने गैस फिलअप किया बच्चों, दिस इज द गैस मॉलिक्यूल्स, यस और नो, यस, दिस इज माय सिस्टम, बराबर है। अब ये जो गैस है बच्चों, इसका कुछ प्रेशर होगा, कुछ इसका टेम्परेचर होगा और कुछ इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, उसके बाद में इसका कुछ मास भी होगा बच्चों, यस और नो, यस। अब ये जो मैंने यहाँ पे प्रेशर बनाया, टेम्परेचर बनाया, वॉल्यूम बनाया, ये सब क्या है बच्चों, इट इज़ अ प्रॉपर्टी, these आर द प्रॉपर्टी। तो अब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या आएंगी, देखिए इसके अंदर, अब देखिए क्या डेफिनेशन आएंगी। अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर रखे ये कंटेनर में स्टूडेंट्स, ये जो दिख रहा है आपको ये गैस के मॉलिक्यूल्स, इनका अगर मैं प्रेशर कहीं पे भी मेज़र करूँगा तो वो कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट, मतलब सब गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट्स है। उसके बाद में इनका जो टेम्परेचर है वो भी हर जगह पे क्या है बच्चों, कांस्टेंट, और ये पूरा इसका वॉल्यूम भी क्या है, कांस्टेंट, ये कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। उसके बाद में इसका मास भी कैसा है बच्चों, यहाँ पे पूरा गैस मॉलिक्यूल का कांस्टेंट ही है। मतलब क्या डेफिनेशन आएंगी यहाँ पे, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज same at all points. It is same at all points is called as thermodynamic equilibriums. यस और नो, यस। इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, इक्विलिब्रियम। मतलब हर जगह पे वो जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, हर जगह पे ये प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम क्या रहेगा इसके अंदर, सेम रहेगा, उसी को कहते हैं हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम्स। अब इधर देखिए गाइज, व्हाट इज हियर नाउ, अब ये जो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है उसका क्लासिफिकेशन क्या है। सो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इज क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स। व्हाट इज दिस, इट इज फर्स्ट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, बराबर है। दूसरा हमारे पास में है व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, यस और नो, यस। और थर्ड हमारे पास में बॉयज, व्हाट इज थर्ड वी हैव अ केमिकल इक्विलिब्रियम, बराबर है। अब ये तीनों के तीनों क्लासिफिकेशन किसके हैं, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम्स। मतलब दोस्तों ये कितनी इसमें क्लासीफाई हो गया, 3 इसमें क्लासीफाई हो गया। अब पहला जो है हमारा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तो आइए हम इसको समझते हैं। पहले कंडीशन को, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को, इसका मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स। अब इफ यू कंसिडर, सपोज दिस इज द सिस्टम वी कंसिडर, सपोज दिस इज द सिस्टम, बराबर है। अब यह सिस्टम हमने सराउंडिंग में रख दी, बराबर है, दिस इज माय सिस्टम, बराबर है। अब ये अगर मैंने सराउंडिंग में रख दिया, ये यहाँ पे सब सराउंडिंग है बच्चों, ये सराउंडिंग, बराबर है। अब ये पूरी सिस्टम मैंने सराउंडिंग में रख दी,
अब ये सिस्टम पे अगर देखेंगे तो हर साइड से फोर्स कैसा लग रहा है, सेम है, ऊपर से भी सेम है, साइड से भी सेम है। ओके, मीन्स एवरी डायरेक्शन द फोर्स इज कांस्टेंट हियर, द फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स इज कांस्टेंट। या फिर हम कहेंगे दूसरा, व्हाट इज प्रेशर इज आल्सो कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। यस और नो? यस। मतलब पूरी सिस्टम यहाँ पे कैसी है, बैलेंस है स्टूडेंट्स, द सिस्टम इज बैलेंस। बराबर है, सिस्टम क्या है हमारे पास में, बैलेंस। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हर जगह पे मीन्स इफ देयर exits no unbalanced force, no unbalanced force within the system, system or between surrounding is called as what is मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मतलब ये पूरी की पूरी सिस्टम कैसी है बच्चों, अभी यहाँ पे बैलेंस है, देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स इज देयर्स बिटवीन व्हाट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब सिस्टम में और सराउंडिंग का जो फोर्स है वो कैसा है बच्चों, सेम है। अगर सराउंडिंग का फोर्स अगर चेंज हो गया या फिर ये सिस्टम का भी फोर्स चेंज हो जाएगा तो ये सिस्टम क्या हो जाएंगी, अनबैलेंस हो जाएंगी, तो वो हमारी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे क्या, नहीं, वो क्या हो जाएंगे फिर नॉन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन जब तक इसके ऊपर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा एज पर द न्यूटन्स सेकंड लॉ, जब तक मैं इसको फोर्स लगाऊंगा ये बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होंगी क्या, नहीं होंगी। जब मैं इस पर कोई फोर्स की वैल्यू चेंज कर दूंगा, कोई भी एक डायरेक्शन से, ऊपर से बोलो, नीचे से बोलो, साइड से बोलो, तभी ये सिस्टम क्या होंगी बच्चों, अनबैलेंस हो जाएंगी, तभी ये क्या कहलाएंगी फिर नॉन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन अभी ये कौन सी सिचुएशन में है, अभी है ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। ओके, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कैसा फोर्स लगा है, नो अनबैलेंस फोर्स विद इन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ठीक है, ये हमारी होगी फर्स्ट डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन देखिए बच्चों, दूसरी क्या डेफिनेशन हमारे पास में, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, अब मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, ये अगर हमारे पास में सिस्टम है, इस मतलब इसके अंदर कोई गैस के मॉलिक्यूल्स है, सपोज दिस आर द गैस मॉलिक्यूल्स, बराबर है। अब इसका जो टेम्परेचर है, वो कैसा है बच्चों, कांस्टेंट है, वो चेंज हो रहा क्या, नहीं चेंज हो रहा, उसी को कहेंगे हम थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, मीन्स व्हाट इज आई एम राइट डाउन हियर, द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम does not change with respective time, उसी को कहेंगे हम थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब बच्चों यहाँ का जो टेम्परेचर है, ये गैस मॉलिक्यूल का, अगर मैंने आज उसका टेम्परेचर मेज़र किया सपोज 30 डिग्री सेल्सियस, सपोज इन 1 जनवरी,
और मैं 30 जनवरी को जाके भी टेम्परेचर चेक करता तो कितना आ रहा है 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब टाइम के साथ में इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा क्या? नहीं हो रहा। वो कैसा है हमारे पास में बच्चों? कांस्टेंट टेम्परेचर है। कैसा है? कांस्टेंट है। उसी को कहते हैं हम व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम्स। यस और नो? यस। और बाकी देखिए थर्ड डेफिनेशंस। थर्ड जो हमारे डेफिनेशन है बच्चों वो कौन सी थी? केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, अब देखिए वंस अगेन आई कंसिडर दिस कंटेनर। ये कंटेनर में मैंने कुछ पार्टिकल डाल डाले वाटर के। सपोज मैंने वाटर कंसिडर किया। वाटर का क्या फार्मूला है बच्चों? H2O। अब ये कंटेनर है इंडिया में, बराबर है। अब उसको मैंने शिफ्ट कर दिया है, ये कंटेनर को कहा, ये कंटेनर को मैंने शिफ्ट कर डाला। सपोज इसमें भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है। ये चले गया USA में। तो USA में अगर ये जाने के बाद में इसका केमिकल फार्मूला क्या रहेगा बच्चों? H2 ही रहेगा। ये H2 चेंज होने वाला है क्या? नहीं। ये H2 क्या रहने वाला है? फिक्स। इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम्स। मीन्स व्हाट इज द देयर? नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सिस्टम एंड केमिकल कंपोजिशन विच इज सेम थ्रू आउट द सिस्टम डज नॉट मीन्स व्हाट इज केमिकल कंपोजिशंस। आई एम राइट डाउन हियर केमिकल compositions does not change with respect to time. Time is called as chemical इक्विलिब्रियम्स। यस और नो? यस। मतलब इसको अगर मैंने मेज़र कर लिया, मतलब इसका केमिकल फार्मूला आज भी H2 है और कई सालों बाद में भी क्या रहेगा बच्चों? H2 रहेगा। मतलब कितना भी टाइम अगर चल जाएगा तो टाइम के साथ में ये H2 चेंज होने वाला है क्या? नहीं। किसका? वाटर का। इसी को कहते हैं स्टूडेंट सम केमिकल इक्विलिब्रियम डज नॉट change with respect to time. Okay guys, yes or no? Yes. So we have to define all the definitions. Which one? Means this all mechanical, chemical and what is thermal. We define the all definitions. We have these ones. So this is our today's discussions. Okay boys, what is we learn? I show once again. Okay, so this is our first titles, specific volume. Then our second, this one is our second explanations. Okay, this is our seconds. Then another what is? This is our third explanations, boys and girls. Yes or no? This is our this one is our third explanations. This is our fourth. This is our very IMP fifth, thermal dynamic equilibriums. These are the types. These are these explanations. Yes or no? Yes. So what is boys? Finally, what is I am saying that I stop here. If you like my videos, so please share my videos with your friends, with your another college friends. Okay, and what is I am saying finally I am saying stay safe. Okay, stay at home. Okay, so thank you very much.